So basically in mutual fund calculations, we have to calculate the NAV for your scheme. So let us calculate NAV as per the video which was shared across to you. NAV ka formula is, so NAV is calculated as total assets of the scheme minus the external liabilities. So that will be net assets value. So net assets value is total assets minus external liabilities, and net assets value actually we have to denote it as per unit. So per unit denote करने के लिए we have to divide it with number of units. So that will be the formula for calculation of NAV, and accordingly let's calculate the NAVs for the different schemes been given to us. So problem number 1, a scheme with 1000 units has the following items in its balance sheet: unit capital 10,000, investment at market value 25,000, other assets including other assets, investment sold but money not received rupees 4,000, other liabilities, investment purchased but payment not made 2,000, reserve 17,000. What would be its NAV, that is net assets value? So this is what we have to calculate. Okay. So let us go for this calculation. So we have to compute NAV. So problem number 1. Computation of NAV. So for computing NAV, we'll be drawing a table. Particulars, rupees, ठीक है. Now particulars rupees. So what basically net asset value is? Net asset value is total assets minus external liabilities. So first we will be adding all the assets. So लेते हैं पहला assets. ठीक है. Assets में पहला assets कौन सा आएगा? So first assets that we are going to take in asset is the market value of your investment. So first assets that we take is market value of investment. And the market value of investment given to us in the question is, they have given us the market value of investment. So market value of investment is 25,000. So whatever you have invested, the market value of it is 25,000. So 25,000 is the market value. That is the first thing that you will be writing. Next, secondly, other assets में कौन से assets है जरा देखते हैं स्कीम में. तो स्कीम में एक तो इन्वेस्ट किया है, उसका मार्केट वैल्यू 25,000 का है. अदर एसेट्स है, अदर एसेट्स 4,000 का है, एंड अदर लायबिलिटीज है 2,000 का. सो पहला अदर एसेट्स लिखते हैं. 4,000 का अदर एसेट्स है. 4,000. तो यू हैव अदर एसेट्स ऑफ 4,000 इन द स्कीम. ठीक है. और अदर एसेट लेने के बाद विल बी टोटलिंग दिस, क्योंकि हमारा एसेट्स हो गए. सो टोटल एसेट्स हमारे कितने हो गए? 29,000 के हमारे पास टोटल एसेट्स है. ठीक है. देन अदर एसेट्स के बाद आएंगे, वी विल बी राइटिंग लायबिलिटीज. सो लेस लायबिलिटीज. तो लायबिलिटीज में अगर देखने गए, सो कितने लायबिलिटीज है हमारे पास? तो हमारे पास एक ही लायबिलिटी है. सो अदर लायबिलिटी, खाली एक ही लायबिलिटी है, अदर लायबिलिटी, एंड दैट इज 2,000. रिजर्व्स जो है वो ओन फंड में आता है, तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं है. यूनिट कैपिटल, दिस आर नंबर ऑफ यूनिट्स बीन गिवन. ओके, सॉरी, यूनिट कैपिटल, दिस इज कैपिटल का अमाउंट बीन गिवन. ये रुपीज में है, तो दिस इज अमाउंट गिवन, बट ये भी ओन फंड में आता है. सो दिस इज नॉट एन एक्सटर्नल लायबिलिटी. सो एक्सटर्नल लायबिलिटी में खाली अदर लायबिलिटी आ रहा है 2,000 का. सो वी विल बी राइटिंग एक्सटर्नल लायबिलिटी में अदर लायबिलिटी, एंड दैट इज ऑफ द वैल्यू 2,000. तो 2,000 लेस करना है, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं माइनस 2,000. सो आई विल बी डिडक्टिंग 2,000 आउट ऑफ दिस, एंड देन व्हाटएवर आई गेट, that will be called as net asset
value. So I'll be getting net assets value, and that is 20. Just net assets value 27,000. So in this sum, we are getting a net assets value of 27,000. 27,000 का हमें नेट एसेट्स वैल्यू मिला. बट ये द नेक्स्ट पॉइंट इज नेट एसेट्स वैल्यू जब मिलता है ये टोटल नेट एसेट्स वैल्यू है, बट हमें नेट एसेट्स वैल्यू पर यूनिट डिनोट करना है. सो नेट एसेट वैल्यू per unit will be equals to, the formula is total net assets value that we have calculated and we will be dividing it with number of units. So this is the formula for calculation of net assets value per unit. So according to this formula, let us substitute the value. So total net assets that we have is 27,000, and that 27,000 we are going to divide it with number of units, and number of units जो scheme में आज के दिन है. So as on today, number of units है, a scheme has 1,000 units. So they have clearly mentioned a scheme as 1,000 units. So number of units 1,000, and accordingly, dear students, I am going to get the value as rupees 27. So rupees 27 is the NAV of your scheme. So this is how net assets value is calculated. I hope it is clear. Okay. Second problem. The following portfolio details of a mutual fund scheme are given below. So the portfolio of that scheme is given. So scheme has invested in stocks, the number of shares that they have invested, and the price, market price is given. So stock P, number of shares invested 4 lakhs and market price 45. Stock Q 6 lakhs 50. Stock R 8 lakhs 25 rupees and stock S 12 lakhs 30 rupees. The scheme has accrued expenses towards portfolio manager of rupees 6 lakhs. So these are expenses accrued. So it is an external liability, expenses payable. There are 80 lakh shares outstanding. So these are number of shares outstanding as on that date. Find out the NAV per unit of this scheme. So let us calculate this. So in this sum, they have not directly given us the market value. They have given us the number of shares and the market price. So what first we are going to do? We are first going to calculate the market value of this investment. Okay? So let's do that. Again, computation of NAV. So for computing NAV, once again we will be drawing a table. Table will be particulars. Rupees. Let's compute. So first what we have to write, we have to first write assets, and assets may the first thing that we are going to calculate is market value. So market value of investments. But as far as last sum was concerned, market value of investment was directly been given. In this sum, we have to calculate the market value. So let's calculate it for each stock that we have invested. So we have invested in altogether 4 stocks, 4 different stocks. So PQRS, and the number of shares invested in each stock is given to us. So P may you have invested 4 lakhs. And the market value of P as on today is 25 rupees, I think so. No, sir, 45 rupees. So 4 lakh into 45. That's going to be your investment. 4 lakh into 45 कितना आ रहा है? एक मिनट, मुझे भी कैलसी लेने दो.
That's going to be 18 lakhs. Then Q. 1 crore 80 lakh. 1 crore 80 lakh. 1 minute. 4 lakh into 45 ना, 1 crore 80 lakhs. $1 crore 80 lakhs. Next, सेकेंड स्टॉक में जो इन्वेस्ट किया दैट इज 6 lakhs and 50 rupees. So 6 lakhs into 50. That's going to be 3 crores. Yes. That's going to be 3 crores. Then स्टॉक आर में इन्वेस्ट किया है. स्टॉक आर में हमने इन्वेस्ट किया है 8 lakhs 25 rupees. So 8 lakhs into 25 rupees. So that is equals to 2 crores. And last एस स्टॉक में हमने इन्वेस्ट किया है 12 lakhs and 30 rupees का मार्केट वैल्यू है. सो इट इज 12 lakhs into 30 rupees and that is equals to 3 crore 60 lakhs. So these are the market value of investments that we have done. और इन सारों का हम टोटल करते हैं. So the total for this is 10 crore 40 lakh. 40 40 lakh. lakhs. 10 crores 40 lakhs is your total market value of investments. ठीक है. और भी कोई एसेट्स है क्या देखते हैं. ये तो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये एक एसेट है. और कोई एसेट है स्कीम में. सो लेट्स चेक. नहीं, कोई एसेट नहीं दिया है तो स्कीम डोंट हैव एनी अदर एसेट्स. बराबर है. स्कीम में कोई कैश बैलेंस नहीं है, कोई करंट एसेट्स नहीं है. बट स्कीम हैज अ लायबिलिटी accrued expenses towards portfolio manager of rupees 6 lakhs. So dear students, scheme has a liability of rupees 6 lakhs towards manager. So less accrued expenses of rupees 8 lakhs. डिडक्ट करते हैं एंड 8 lakhs डिडक्ट करने के बाद हमें कितना आंसर आ रहा है जरा चेक करते हैं. दैट विल बी आवर नेट 10 crore 32 lakh. एसेट वैल्यू. 6 lakhs है सर accrued expense. 6 lakhs है कितने. 8 lakhs है. जस्ट अ सेका. 6 lakhs. I'm sorry. So accrued expenses are 6 lakhs. And accordingly, the answer is going to be 10 crore 34. So it is going to be 10 crore 34 lakhs total net assets. चलो total net assets आने के बाद what we have to calculate is net asset value per unit. And net assets value per unit का फॉर्मूला हमने ऊपर भी लिखा था. So what is the formula? Formula is total net assets upon number of units. So accordingly, total net assets is 10 crore 34 lakhs and divide it with number of units. So number of units जो दिया है 80 lakh. 80 lakhs ना. 80 lakhs units are outstanding. So number of units 80 lakhs.
So chalo, let's calculate the answer. This is equals to 12.925. So your NAV for this scheme is 12.925. So this is the NAV as on this date. So this is how NAV is to be calculated. Chalo, let's move on to sum number 3 then. Calculate the NAV of a mutual fund from the following information. On 1/4/2018, outstanding units 1 crore of rupees 10 each. Market value rupees 16 crores. So outstanding units on 1/4/2018 are 1 crore, 10 each का एक unit है and market value 16 crores. Outstanding liability as on that day is rupees 5 crores. Other information, 20 lakh units were sold during the year at rupees 24 per unit. No additional investment were made during the year, and as at the end of the year, 50% of the investment held at the beginning of the year were quoted at 80% of the book value. 10% of the investments were declined permanently, 10% below cost. On 31st/3/2019, outstanding liabilities were rupees 1 crore. Remaining investment were quoted at rupees 13 crores. This is what has been given to us. Now, dear students, what they have asked in this sum, they have given us the information for 1/4/2018. Okay, 1st April 2018 का information दिया है, and they have asked us the NAV of 31st March 2019. ठीक है? So what we have to do, 31st March 2019 के दिन हमारे पास कितने assets है, that we have to calculate, and 31st March 2019 के दिन हमारे पास कितने liabilities है, तो ये stuff हमें calculate करना है. So NAV as on date रहता है, यानी दूसरे दिन का NAV चेंज हो जाता है क्योंकि एसेट का स्टेटस चेंज होता है. सो NAV एवरी डे कीप्स ऑन चेंजिंग. तो यहाँ पे हमें NAV जो कैलकुलेट करना है, दैट इज फॉर 31st March 2019. सो चलो, लेट अस कैलकुलेट द NAV फॉर 31st March 2019. Computation of NAV. Particulars. Rupees. ठीक है. So for computation of NAV, सबसे पहला पॉइंट अराइज होता है, व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है. So dear student, we have to calculate the market value of investments, और market value of investment as on 1/4/2018 बहुत clearly दिया था. 1/4 यानी 1st April के दिन market value 16 crores का था, लेकिन 31st March के दिन market value ईमानदारी से नहीं दिया है. वो कैसे दिया है वो चेक करते हैं. तो देखो, उन्होंने बोला है no additional investment were made during the year. So during the year there is no additional investment made, यानी ईयर के स्टार्टिंग में 1 करोड़ रुपीज आउटस्टैंडिंग है और 10 रुपीज के हिसाब से इन्वेस्ट किया था. सो अभी भी उतना ही इन्वेस्टेड है. सो दे हैव नॉट मेड एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट. सो लेट्स चेक व्हाट दैट मींस. एंड एज एट द एंड ऑफ द ईयर, 50% of the investment held at the beginning of the year were quoted at 80% of the book value. So 50% of the investments are quoted at 80% of the book value. So let us calculate the market value of investment as on today. Market value of investment, and उसमें सबसे पहला पॉइंट आएगा तो फर्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी वो जो लास्ट टाइम का इन्वेस्टमेंट था उसका 50% जो है उन्होंने बोला है. सो लास्ट टाइम का इन्वेस्टमेंट कितना था, 1 करोड़ आपका यूनिट्स है, एंड 1 करोड़ यूनिट्स का जो बुक वैल्यू है वो 10 रुपीज का है. हमें 16 करोड़ नहीं देखना है डियर स्टूडेंट, बिकॉज 16 करोड़ वो दिन का मार्केट वैल्यू था. आज का मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें उस दिन का बुक वैल्यू के हिसाब से सोचना है. सो डियर स्टूडेंट्स, द बुक वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इज 10 करोड़. 1 करोड़ इंटू 10, तो 10 करोड़ का आपका बुक वैल्यू है. उसका 50% जो है उसका वैल्यू 80% हुआ है. दे आर कोटेड एट 80%. सो हाउ इज दिस गोइंग टू बी एंटर्ड. तो चलो, 10 करोड़ का तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है.
सो मैं 10 लिख रहा हूं, फाइनल आंसर में मैं क्रॉस लिख लूंगा. सो 10 का हमारा इन्वेस्टमेंट है इनटू उसका 50% बोला है उन्होंने. सो 10 करोड़ का 50% का वैल्यू आज के दिन 80% का ही है. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. ठीक है. So we have to calculate this in order to get the market value of this investment. So 10 crore का 50% is value quoted at 80% of the value. So how much the answer is? So 5 crore into 80% and that's going to be 4 crores. So the market value as on this investment today is 4 crores. ये हो गया वो पहला पॉइंट जो उन्होंने बोला था. Let's move on and check the second point. अभी क्या बोला? 10% of the investment were declined permanently 10% below cost. So dear students, 10% of the investment के बारे में बात कर रहे हैं वो लोग. यानी 10 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है उसका 10% जो है that is valued at 10% below permanently. ये 10% below वैल्यू करना है मतलब हमें वैल्यू कितने परसेंट पे करना है उसे? 90% पे. So we will be valuing it at 90%. So let's check this. So 10 lakhs का 10% मतलब 1 करोड़ होता है. तो 1 करोड़ का वैल्यू ये 90% हो चुका है. 90% मतलब कितना आएगा? 0.9. So the value for this investment is 0.9 crores. So whatever we are writing it in crores. So it is 0.9 crores is the value of this investment. ठीक है. अभी भी पूरा इन्वेस्टमेंट्स के बारे में डिटेल हुआ नहीं है. सो अभी भी हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि टोटल 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है. 10 करोड़ में से अब तक कितना इंफॉर्मेशन, कितने करोड़ का इंफॉर्मेशन हमको मिला है? हमको खाली 60% का इंफॉर्मेशन मिला है. 10 करोड़ में से 60% का ही इंफॉर्मेशन हो गया. अभी भी 10 करोड़ का 40% बाकी है और वो 40% का क्या करना है वो हम देखते हैं. सो व्हाट दे हैव गिवन, they have clearly stated, fourth point नहीं direct fifth point देख रहा हूँ, remaining investments were quoted at rupees 13 crores. So remaining investments are quoted at 13 crores. So dear students, straight away remaining investment का market value दे दिया है. So for remaining investment they have straight away given us the market value of 13 crores. Is that clear? So this is the information being given of market value. So let's check as on today how much is the total market value. So 4 plus 13 plus 0.9. So as on today the market value of your investment is 17.9 crores. Nice. I hope this is clear. Okay. This is the market value of your investments as on today. ये हो गया मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. और कोई एसेट्स है क्या जरा चेक करते हैं स्कीम में. सो स्कीम में कोई भी और एसेट्स नहीं है लेकिन लायबिलिटी है. सो लायबिलिटी एज ऑन 31/3/2019 इज 1 करोड़. सो चलो डिडक्ट करते हैं आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी. लेस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कितना देखा था हमने आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी? 1 करोड़ का ना. सो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज ऑफ 1 करोड़. ठीक है. एंड अकॉर्डिंगली डियर स्टूडेंट्स, हाउ मच इज द नेट एसेट, टोटल नेट एसेट दैट यू आर गोइंग टू गेट? सो टोटल नेट एसेट वैल्यू एज ऑन टुडे इज गोइंग टू बी 16.9. सो 16.9 का टोटल नेट एसेट्स वैल्यू है एज ऑन 31 मार्च 2019. आई होप दिस इज क्लियर. लेकिन हमें टोटल नेट एसेट्स वैल्यू के साथ साथ क्या पूछा है? हमें पूछा है एनएवी. और जब भी हमें फंड का एनएवी बताना है हमें उसको टोटल में नहीं बताना है, पर यूनिट में बताना है. सो पर यूनिट में बताने के लिए डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करना पड़ेगा. बराबर है. द फॉर्मूला सेज डिवाइड इट विद नंबर ऑफ यूनिट्स. लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये सब में स्ट्रेट अवे नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं दिया हुआ है. लेट अस चेक हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है. तो उन्होंने बोला है फर्स्ट 1/4/2018 के दिन आउटस्टैंडिंग यूनिट्स बोला है 1 करोड़ का. सो वी हैव आउटस्टैंडिंग यूनिट्स ऑफ 1 करोड़ लेकिन वो 1/4/2018 के दिन है. ठीक है. फिर हमें इधर आगे बोला है
अदर इंफॉर्मेशन में 20 लाख यूनिट्स वे सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट ₹24 पर यूनिट. सो हमने 20 लाख यूनिट्स और सेल किया, उसका मतलब टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर कितना हुआ? सो ये दोनों का टोटल दैट इज 1 करोड़ प्लस 20 lakhs. So it's going to be 1 crore 20 lakhs. So last दिन हमारे पास 1 crore 20 lakh units है. So let us first write down the total number of units. So total number of units as on 31st March 2019 is equals to ओपनिंग यूनिट्स हमारे पास कितना था? ओपनिंग यूनिट्स हमारे पास था 1 करोड़ का, प्लस हमने एडिशंस कितना दिया? तो एडिशंस हमने दिया 20 lakhs. 20 lakhs को हम करोड़ में कैसे लिखेंगे? 0.2. ओके, सो दैट्स गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1.2 crores. 1.2 crores का नंबर ऑफ यूनिट्स है, एंड अकॉर्डिंगली लेट अस कैलकुलेट द NAV फॉर दिस स्कीम. सो NAV per unit will be equals to total NAV upon total number of units. So that's equals to 16.9 upon 1.2. So it is 14.0833. That is your NAV as on today. I hope this is clear. ठीक है, चलो, this is sum number 3. Let's move on to problem number 4. प्रॉब्लम नंबर 4 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सो ध्यान दो. स्पैरो होल्डिंग्स इज अ सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड which made its on 10th April 2018 at ₹10 face value per unit. So 10 rupees का face value है, NFO 10 rupees में किया, ठीक है. Subscription were issued for 90 lakh units. An underwriting agreement was also entered into with Affinity Capital Markets Limited to underwrite the entire NFO of 100 lakhs units on a commission of 1.5%. So ये जो न्यू फंड ऑफर किया है पब्लिक को, दिस न्यू फंड इज एक्चुअली अंडररिटन. सो अंडरराइट करने के कारण यू हैव टू रिमेंबर कि अंडरराइटिंग कमीशन देना है और 1.5%, ठीक है. दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस. आउट ऑफ द मनीज रिसीव्ड, rupees 892.50 lakhs were invested in various capital market instruments. The marketing expenses for the NFO amounted to rupees 11.25 lakhs. During the financial year ended March 2019, the fund sold securities having cost of rupees 127.25 lakhs, जिसका face value 54.36 lakhs for rupees 141.25 lakhs. The fund in turn purchased securities for rupees 130 lakhs. The management expenses of the fund are regulated by SEBI stipulations, which state that the same shall not exceed 0.25% of the average fund invested during the year. The actual amount spent towards management expenses was rupees 2.47 lakhs, of which rupees 47,000 was in arrears. The dividend earned on the investment held amounted to rupees 2.51 lakhs, of which a sum of rupees 25,000 is yet to be collected. The fund distributed 80% of realized earnings. The closing market value of the portfolio was rupees 1,120.20 lakhs. You are required to determine the closing per unit NAV of the fund. So this is what they have given us. ठीक है, so चलो let's go for solving this one. So ये ऐसे वाले सम में डियर स्टूडेंट हमें सबसे पहले एसेट्स लिखना है. एनएवी कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल एसेट्स लिखना है. एसेट में सबसे पहले हम लिखेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. एंड डियर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है ये सब में. मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज स्ट्रेट अवे बीन गिवन टू अस. कितना दिया मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट? सो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इधर स्ट्रेट अवे दिया है. मार्केट वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज
given to us, so that is straight away been given. लेकिन ऐसे सम में जो कैलकुलेट करना है वो अदर एसेट्स, और अदर एसेट्स में क्या कैलकुलेट करना है? सो अदर एसेट्स में जो मेजर कैलकुलेशन दैट यू हैव टू डू इन दिस सम इज द कैश अवेलेबल एज ऑन टुडे, यानी जिस दिन आप एनएवी कैलकुलेट कर रहे हो उस दिन आपके पास स्कीम में कितना कैश बैलेंस अवेलेबल है. दैट इज द मेजर कैलकुलेशन दैट यू हैव टू डू एज फार एज दिस सम इज कंसर्न. So dear student, before calculation of NAV, let us calculate the closing cash balance on this very date, on the date that we are going to calculate the NAV. ठीक है? So let's do that. Computation of cash balance करना है. Okay, so this is what you have to do, computation of closing cash balance. Now dear students, of computing closing cash balance, जो सबसे पहले हमको क्लोजिंग कैश बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए चाहिए वो है ओपनिंग कैश बैलेंस. ओपनिंग कैश बैलेंस पहला चाहिए हमें, एंड ओपनिंग कैश बैलेंस ढूंढने के लिए देखते हैं हमारा ओपनिंग कैश बैलेंस हमको कैसा मिलेगा, सो दैट वी कैन गो फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैश बैलेंस. सो लेट्स चेक हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैश बैलेंस फर्स्ट. तो देखते हैं हमारे पास शुरुआत में कितना कैश आया था, तो उसका एक सेपरेट कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा ताकि हमको ओपनिंग कैश बैलेंस पता चले, और ओपनिंग कैश बैलेंस के हेल्प से हम क्लोजिंग कैश बैलेंस तक जाएंगे. तो देखते हैं एज कैश बैलेंस मतलब 10 अप्रैल 2018 के दिन ये स्पैरो होल्डिंग्स के पास कितना कैश बैलेंस आया है as far as this scheme is concerned. तो चेक करते हैं. चलो, तो पहला बोलो क्या क्या आएगा. सबसे पहले आएगा हमने लोगों को म्यूचुअल फंड्स इशू किए, न्यू फंड ऑफर किया है, तो लोगों से हमको पहले सब्सक्रिप्शन का पैसा आएगा. सो कितना आया सब्सक्रिप्शन का अमाउंट, कितने सब्सक्राइब हुए हैं. तो यहाँ पे एक गलती क्या होगा, देखो स्टूडेंट्स को अगर मैं पूछूंगा ओपनिंग कैश बैलेंस हमें कैलकुलेट करना है कितने सब्सक्राइब हुए हैं, तो स्टूडेंट्स बोलेंगे कि 90 लाख यूनिट सब्सक्राइब हुए हैं और 100 रुपीज का एक यूनिट है. सो दे विल बी सेइंग कि हमारे पास कैश आएगा 10 रुपीज का एक यूनिट है. सो दे विल बी सेइंग हमारे पास कैश आएगा 90 into 10, दैट्स गोइंग टू बी 900 लाख रुपीज का हमारे पास कैश आएगा स्टार्टिंग में. लेकिन डियर स्टूडेंट दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि इवन दो द सब्सक्रिप्शन इज अंडर सब्सक्राइब, यानी म्यूचुअल फंड इज अंडर सब्सक्राइब, 90 लाख सब्सक्रिप्शन हुआ है, लेकिन आपने ऑफर किया था 100 लाख, और आपने 100 लाख ऑफर करने के बाद उसे अंडरराइट किया था. अब अंडरराइट का एक इंपॉर्टेंस क्या है, जब भी हम म्यूचुअल फंड को अंडरराइट करेंगे, म्यूचुअल फंड या शेयर्स किसी को भी हम अंडरराइट करेंगे, तो डियर इट इज एन अंडरराइटर्स रिस्पांसिबिलिटी टू टेक द रिमेनिंग नंबर ऑफ शेयर्स. यानी एज पर कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल 100 लाख का सब्सक्रिप्शन हो जाएगा. इज दैट क्लियर? So you don't have to look at this 90 lakhs. You have to concentrate on the total number of mutual funds issued by the company, and that are 100 lakhs. तो शुरुआत में हमारे पास कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास कितना कैश आएगा, सो 100 lakhs का into 10 rupees, that is 1000 lakhs. So company is going to receive 1000 lakhs. So what I am going to do is I am going to first calculate opening cash balance in order to get the closing cash balance का value. तो मैं पहले opening cash balance ढूंढूंगा, ये मुझे चाहिए. So I am going to go for a working note calculating opening cash balance. तो चलो वो कैलकुलेट करते हैं. ओपनिंग कैश बैलेंस में कॉलम्स बना लेता हूं पहला. सबसे पहले हमने सिक्योरिटी सेल किया. सिक्योरिटी सेल करने से
म्यूचुअल फंड सेल करने से हमें कितना प्रोसीड्स मिला. सो प्रोसीड्स फ्रॉम NFO. सो NFO से हमें प्रोसीड्स कितना मिला. सो दैट विल बी इक्वल्स टू 100 lakhs into 10 rupees का फेस वैल्यू है. सो दैट्स गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1000. सो 1000 का हमें नेट प्रोसीड्स मिला था. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है. उसके बाद ये प्रोसीड्स में से हमें सर्टेन एक्सपेंसेस डिडक्ट करना है, क्योंकि सबसे पहला तो हमने अंडरराइट करने के कारण ये जो प्रोसीड्स है उसमें से हमें डिडक्ट करना पड़ेगा अंडरराइटिंग कमीशन. टू डिडक्ट एन अंडरराइटिंग कमीशन. एंड अंडरराइटिंग कमीशन के बारे में उन्होंने कितना बोला है. सो अंडरराइटिंग कमीशन 1.5% देने वाला है. और 1.5% किसका. सो अंडरराइटिंग कमीशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द टोटल अमाउंट दैट इज अंडर रिटर्न. सो 1000 का आपने NFO ऑफर किया था, 1000 crores का, 1000 lakhs का. सो इनटू 1.5%, that is going to be your underwriting commission that you are going to pay. So 1000 into 1.5%, so that's going to be 15 का NFO आप पे करोगे. सॉरी, अंडरराइटिंग कमीशन आप पे करोगे. ठीक है. सो ये हो गया अंडरराइटिंग कमीशन 15 lakhs का. उसके बाद और क्या खर्चा हुआ था उसी दिन. आउट ऑफ द मनीज रिसीव्ड 892.50 lakhs were invested in various capital market instruments. तो वी आर एज्यूमिंग कि वो इन्वेस्टमेंट्स फर्स्ट डे ही हुआ है. सो ये इन्वेस्टमेंट हमको डिडक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम वॉट एवर कैश इज अवेलेबल फॉर अस. ठीक है. तो हम उसमें से 892.50 lakhs वी आर गोइंग टू डिडक्ट. The marketing expenses for the NFO amounted to rupees 11.25 lakhs. Marketing expenses भी किया है NFO का 11.25 lakhs. So चलो let us calculate. सबसे पहला से और डिडक्ट कर रहा हूं लेस मार्केटिंग एक्सपेंसेस 11.25 lakhs. मार्केटिंग एक्सपेंसेस डिडक्ट करना है. देन फर्दर लेस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट परचेस्ड. यही पैसे से आपने उस दिन इन्वेस्टमेंट्स खरीदा एंड दैट आर 892 ही है ना. या 892.50 lakhs का आपने इन्वेस्टमेंट्स खरीदा. 892.50 lakhs का आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा है. ठीक है. सो लेट अस कैलकुलेट दिस थिंग. ये सारे चीजें नेगेटिव है. सो इनको सबको माइनस करना है. चलो माइनस करके आंसर चेक करो कितना आ रहा है. दैट इज द अमाउंट 0.25. that is the opening cash balance that you have. So opening cash balance is going to be 1000 minus 15 minus 11.25 minus 892.5. And that's going to be 81.25. Opening cash balance that you are having 81.25. So dear students, closing cash balance calculate करने के लिए the opening cash balance that you are going to take is 81.25. So let's write down opening cash balance 81.25. This is the opening cash balance that you have. फिर आपको क्लोजिंग तक पहुंचने के लिए जो भी पैसा ड्यूरिंग द ईयर आपको मिला है
वो आप ऐड करोगे और जो भी आपको ड्यूरिंग द ईयर आपने पे किया है वो आप लेस करोगे। हम ऐड लेस करते जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स चेक कितने पैसे हमको मिले हैं ड्यूरिंग द ईयर, वो हम ऐड करेंगे इसमें ओपनिंग बैलेंस में, और जो भी हमने पेमेंट्स किया या जो भी खर्चा हुआ है उसको हमें लेस करना है। सो लेट अस गो एंड चेक कहां से पैसा आया ड्यूरिंग द ईयर। सो यहां तक हमने रीड कर लिया था, एनएफओ का मार्केटिंग एक्सपेंसेस तो हो चुका है। नाउ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो ईयर में क्या हुआ वो हम चेक करते हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 March 2019, द फंड सोल्ड securities having cost of rupees 127.25 lakhs, जिसका फेस वैल्यू 54.36 lakhs का है, उसको बेचा 141.25 lakhs में। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको कैश से मतलब है, हमको प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं है। वी आर कंसर्न विथ कैश, कितना हमको आया। सो कितना कैश आया रहेगा सेल करके 141.25, क्योंकि दैट इज द सेलिंग वैल्यू। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव अ नेट प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और 141.25, तो वो ऐड होगा। $141.25, दैट्स द प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो मैं ऐड में लिख रहा हूं। अब और आगे चेक करते हैं। द फंड इन टर्न परचेज सिक्योरिटीज ऑफ रुपीज 130 lakhs। सो ये कुछ सिक्योरिटीज हमने बेचा जिससे हमें 141.25 lakhs आया, और इंटर्न जो पैसा हमको मिला उससे हमने और सिक्योरिटीज खरीदा 130 lakhs का, तो यहाँ पे पैसा गया हमारे पास से। सो ये लेस में लिख रहा हूं, कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटीज परचेस्ड 130। Further, the management expenses of the fund are regulated by SEBI stipulations, which state that the same shall not exceed to 0.25% of the average fund invested during the year. Now dear students, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस सेबी बोलता है 0.25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और किसका 0.25%? एवरेज फर्स्ट फंड इन्वेस्टेड ड्यूरिंग द ईयर का। सो दैट मींस ये 0.25% कितना आ रहा है ये कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला हमें एवरेज फंड इन्वेस्टेड ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, वो पॉइंट है। देन फर्दर उन्होंने क्या बोला है, द एक्चुअल अमाउंट स्पेंड टुवर्ड्स मैनेजमेंट एक्सपेंसेस वाज rupees 2.47 lakhs, of which 47,000 was in arrears, ऐसा उन्होंने कहा है। तो द फंड हैज एक्चुअली स्पेंड एन एक्सपेंडिचर ऑफ 2.47 lakhs, लेकिन सेबी बोलता है कि 0.25% से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो हमें दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि जो कंपनी ने एक्सपेंडिचर किया है वो ज्यादा है कि सेबी का एक्सपेंडिचर, यानी किसका एक्सपेंडिचर हमें लेना है, सेबी का स्टेपुलेशन के हिसाब से जाना है या मैनेजमेंट एक्सपेंसेस जो एक्चुअली हुआ वो लेना है। सो लेट अस डू द कैलकुलेशन फॉर मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, उसका एक अलग से वर्किंग नोट आएगा। सो मुझे अभी भी क्लोजिंग कैश बैलेंस कैलकुलेट करना है, उसके लिए मैंने एक वर्किंग नोट ऑलरेडी कर लिया जिसमें मैंने ओपनिंग कैश बैलेंस कंप्यूट किया। अब मैं वापस एक वर्किंग नोट कर रहा हूं और यहां पे मैं वर्किंग नोट करूंगा कैलकुलेशन of management expenses. So let's calculate the management expenses. चलो अगेन द सेम थिंग, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस कैलकुलेट करते समय हमें देखना पड़ेगा 0.25% किसका बोला है, तो 0.25% एवरेज इन्वेस्टमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर। सो लेट्स कैलकुलेट द एवरेज इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर फर्स्ट। सो एवरेज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है। एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या रहेगा? सो एवरेज में आपको पता है एवरेज इज नथिंग बट ओपनिंग इन्वेस्टमेंट
ओपनिंग इन्वेस्टमेंट और फिर क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट लेना है और दोनों का एवरेज निकालना पड़ेगा। सो ये ओपनिंग इन्वेस्टमेंट्स कितना था और क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट कितना था, वो दोनों को लेने के बाद ही हम एवरेज कर पाएंगे। ठीक है, सो लेट्स गो फॉर ओपनिंग इन्वेस्टमेंट फर्स्ट। ओपनिंग इन्वेस्टमेंट हमने कितना किया था वो क्लियर है। ओपनिंग इन्वेस्टमेंट हमने किया था 892.50 लाख हमने इन्वेस्ट किया था स्टार्टिंग में। सो 892.50 इज आवर ओपनिंग इन्वेस्टमेंट। सो 892.50 ये हमारा ओपनिंग इन्वेस्टमेंट है। सो दिस इज क्लियर, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट क्लियर है। लेकिन क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट्स कैलकुलेट करने के लिए क्या हुआ था, उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखो शुरुआत में हमने 892.50 लाख इन्वेस्ट किया है, बराबर है। फिर ड्यूरिंग द ईयर हमने कुछ सिक्योरिटीज बेचे, तो सिक्योरिटीज बेचने के बाद ये इन्वेस्टमेंट कम हुआ रहेगा, और कुछ सिक्योरिटीज खरीदे भी, तो खरीदने के बाद वो इन्वेस्टमेंट वापस बढ़ा रहेगा। सो हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। सो चेक करते हैं, तो बेचे कितने के इन्वेस्टमेंट, तो इधर अगर देखें कैश बैलेंस में, अगर देखें तो कैश बैलेंस बता रहा है कि हमने सेल किए थे 141.25 के इन्वेस्टमेंट। लेकिन डियर स्टूडेंट इसको लेस मत करना, क्योंकि ये जो 141.25 है दिस इज नथिंग बट द सेलिंग प्राइस। हमें जब इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है तो वो कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है। इसीलिए जो सेल प्राइस हम करेंगे, जो माइनस हम करेंगे वो कॉस्ट प्राइस से माइनस करेंगे। सो लेट अस चेक द कॉस्ट प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट सोल्ड। तो इधर क्लियरली बोला है, देखो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 30 मार्च 2019 द फंड सोल्ड सिक्योरिटीज हैविंग कॉस्ट ऑफ रुपीज 127.25 lakhs। देखिए फेस वैल्यू का कोई भी मतलब नहीं है, फेस वैल्यू का मतलब खाली इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलने के लिए, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट या डिविडेंड नहीं मिल रहा है, तो फेस वैल्यू से हमें कंसर्न नहीं है। हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ये दो कॉन्सेप्ट से कंसर्न है। उसमें से सेलिंग प्राइस हमने सेल्स कैश वैल्यूएशन में ले लिया था। यहाँ पे वी हैव टू टेक कॉस्ट प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस इज 127.25 lakhs। तो उतने अमाउंट के सिक्योरिटीज हमने सेल किए हैं, तो उतना कॉस्ट सिक्योरिटीज का कम हुआ था। 120 कितना पड़ा था, 127.25